जय मसीह के मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम पे स्वागत है। हम इस चैनल पे थियोलॉजी, अपोलोजेटिक्स और वर्ल्ड रिलीजन्स के ऊपर बात करते हैं और हम अपने मसीही विश्वास की रक्षा करते हैं। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है रणवीर की कहानी उन्हीं के जुबानी। तो इसमें हम बात करेंगे रणवीर अलाहाबादिया, एक यूट्यूबर है। उनके हाथों में गुदा गया एक बाइबल वर्स है फिलिपियंस 4:13। तो उसके पीछे का कहानी हम देखेंगे, क्यों उन्होंने उस बाइबल वर्स को अपने हाथ में गुदाया और क्यों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उससे पहले हम एक वीडियो देखेंगे और हमारे साथ जैसे कि हमारे भैया शरीफ भैया जुड़े हैं और वो उसके ऊपर बात करेंगे, वो उनको रिफ्यूट करेंगे और हमें आगे समझाएंगे कि क्यों रणवीर अपने हाथों में जो टैटू गुदाए हैं वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सोच लेके गुदाए हैं। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। These are the highlights of India's smartest podcast, The Ranveer Show. Welcome to TRS Clips. Make sure you hit that bell icon and don't forget to subscribe. Rajas joined my life. Team started building up. Things started becoming better, happier, more social. The tiger turned into a lion. In this phase of my life, the lion needed a lioness. And that's what I was hoping and praying for. I'm never that guy who says that you should get someone else's name tattooed or something that symbolizes another person. But after I turned into that lion, there were two things I was thinking of very distinctively. The first was that I needed a partner in my life. The second was my reinstated faith in God. I used to still think of that Shankar Bhagwan dream. I used to think about my ayahuasca experience that I'd had. I was getting more and more spiritual in life. I started reading verses from the Bible. I started watching a lot of UFC again. A very famous UFC fighter called John Jones had this Bible verse tattooed on his shoulder. It said Philippians 4:13. I can do all things through he who gives me strength. That thought means that anything you do in your life, whether you become a lion, tiger, elephant, shark, all that is the universe acting through you. It's not just you. Once I became the tiger and the lion, I also saw arrogance rising within me. I did this. It was all me alone, all me. I think that latching on to spirituality in that phase of my life was a way to cope with that arrogance. So when that someone special finally came into my life, she was a very positive effect on me at that point. I just felt like to symbolize that moment of like being aware of your own arrogance, being aware of your own anger, also being aware of your own faith and where you want to go in life. All that's encapsulated in my Philippians 4:13 tattoo, just like John Jones. And just like a lot of other athletes who have the same tattoo. Philippians 4:13, I can do all things through him who gives me strength. It's my favorite verse from the Bible. It's one of my favorite spiritual quotes in the world. This was the second last tattoo. चलो हम देखते हैं फात में ये पर्टिकुलर रणवीर सब लोग ने सुना क्या रणवीर ने कहा, उन्होंने क्यों टैटू लगाया। टू थिंग्स, वन इज जॉन जोन्स एंड सेकंड जो यूएफसी फाइटर है और दूसरे समवन स्पेशल केम इन हिज लाइफ। तो हम देखते हैं वो तो यहाँ पे मैं एक दिखाना चाहता हूँ प्रेजेंटेशन। आई विल जस्ट शेयर इट एंड उसके थ्रू हम देख सकते हैं, वील एड्रेस उसका ऑब्जेक्शन। फिलिपींस 4:13 क्या है उसका भी हम आगे देखेंगे, उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे बहुत लाइक हिंदू फ्रेंड्स हो गए जो जानते नहीं है फिलिपींस 4:13 क्या है और क्यों लगाया रणवीर ने अपने हाथ में, और लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए था वो भी आप डिसाइड करो जब मैं ये एनालिसिस करता हूँ उनका टैटू का। तो लेट्स गो टू द स्लाइड। तो टाइटल है द वियर्ड टैटू स्टोरी ऑफ द बाइबल वर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये उनके हाथ, एक्चुअली रणवीर के हाथ में टैटू लगा है फिलिपींस 4:13। बाय द वे ये बाइबल वर्स नहीं है, फुल बाइबल वर्स नहीं है, ये खाली बाइबल वर्स का रेफरेंस है।
तो अगर किसी को कोई जानना चाहता है क्या फिलिपियंस 4:13 कहता है, वो उनके हाथ में लिखा नहीं है। वो देखने के लिए आपको ये बाइबल रेफरेंस में जाना पड़ेगा देखने के लिए क्या होता है फिलिपियंस 4:13। तो रणवीर इलाहाबादी का ये कहानी हम देखते हैं, उनके टैटू वाला स्टोरी, राइट, विच इज अगेन हमने लास्ट टाइम भी उनका एक लिया था सेशन, जब वो ही वाज ट्राइंग टू टेक द बाइबल वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बाय फॉलोइंग सम योगानंद सरस्वती का, योगानंद सत्संग, उनका क्या बोलते हैं अलग ही एक इंटरप्रिटेशन था, सेम इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी रणवीर वापस वही कर गए, इंटरप्रिटेशन, बाइबल इंटरप्रिटेशन, ही इज मेसिंग इट अप अगेन, प्रॉब्लम कर गए। तो देखते हैं हम स्लाइड। तो रणवीर ने एक उसका टैटू के बारे में उसने एक शो भी किया था, सॉरी एक वीडियो भी लगाया था और एक ब्लॉग भी लिखा है अपने वेबसाइट में एक्सप्लेनिंग टैटूज। तो उनके बॉडी में फिलहाल अभी तक 6 टैटूज है जो आपको दिखाई देते हैं। नाउ इफ यू पुट्स रिलीजियस टैटूज, जो उसके रिलीजन के टैटूज है, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है, बट व्हेन ही टेक्स बाइबल का एक कुछ अपने ऊपर डाल रहे टैटू, और ये हिंदू लोगों को भी अपने हिंदू भाई बहनों को भी पूछना चाहिए, क्यों आप एक बाइबल का टैटू अपने हाथ में लगाते हो? क्या भगवत गीता में नहीं है कुछ जो आप अपने बॉडी में लगा सके, या आपके कोई भी दूसरे हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है जो अपने बॉडी में लगा सके? एंड इसमें आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि रणवीर एक बहुत एक इसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, लेकिन वो इजीली इन्फ्लुएंस बाय अ लॉट ऑफ चाइल्डिश थिंग्स, राइट। उनका वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल एथलीट बोलते हैं, लेकिन आई डाउट जितना जैसा बाइबल इंटरप्रेट करते हैं, ही शुड नॉट बी कॉल्ड एनीथिंग इंटेलेक्चुअल जैसा वो इंटरप्रेट करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। तो ये है बियर, नीचे आपने लिंक देखा होगा beerbiceps.com, उसमें रणवीर ने यही सेम जो हमने वीडियो देखा है उसको राइटिंग में लिखा है, एंड दिस इज द उसका टैटू नंबर 5 है। तो 6 टैटूज थे, उसका भी सब एक सिग्निफिकेंस था, उनके रिलीजियस या लाइफ का सिग्निफिकेंस, लेकिन ये 6 टैटू ऑफ द बाइबल वर्स क्यों उन्होंने लगाया ये टैटू, वो हम देखेंगे। तो इसमें रणवीर क्या कहता है कि आफ्टर वर्किंग सो हार्ड आई यूज्ड टू थिंक ऑफ 2 डिस्टिंक्टिव थिंग्स। 2 चीज देखते थे वो, एक ना सोचते थे उनके बारे में, एक उनके लाइफ पार्टनर, उनके लाइफ में कौन लाइफ पार्टनर आने वाला है, और दूसरे अबाउट द फेथ, रीइंस्टेट फेथ इन गॉड, राइट। तो ये 2 चीज है। उसके आगे ये क्या बोलते हैं कि आई यूज्ड टू थिंक ऑफ लॉर्ड शिवाज ड्रीम, शंकर जो उन्होंने बोला, शिवा का ड्रीम, वो उसके बारे में वो सोचते थे। अभी आप शिवा का ड्रीम सोचते हो तो वो रास्ते पे जाओ, आप जाके देखो कि भाई शिव पुराना क्या कहता है। वो अगर आप एक हिंदू हो तो यू वुड बी इंटरेस्टेड, आप जाओगे अपने हिंदू रूट्स में जाके देखो क्यों ये ड्रीम आया, क्यों है, क्या है उसका सिग्निफिकेंस। लेकिन इंस्टेड ऑफ शिवा का स्टडीज है वो सब डायरेक्शन में जाने के लिए वो बाइबल पढ़ गए। अभी बाइबल भी आप पढ़ गए, वो अच्छे से पढ़ गए तो ठीक है, वो भी अच्छे से नहीं पढ़ गए। और उसके बाद उन लोग वो बोलते हैं कि वो मैं यूएफसी मैचेस देखता हूँ। यूएफसी यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, इट इज वो फाइटिंग का एक मैच रहता है जो डब्ल्यू से ज़्यादा आगे। डब्ल्यू तो ऑलमोस्ट थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस इतना टफ नहीं है जितना यूएफसी एंड ऑल दोस थिंग्स आर। तो वो एक्चुअल फाइट्स एक्चुअली रहते हैं, एक्चुअल सबमिशंस वो सब है उसमें। तो ये 3 चीज, तो कैसे वो आइडिया में आए टैटू लेने के लिए? नंबर 1, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ही यूज्ड टू ड्रीम ऑफ शिवा लॉट, राइट। चलो आप शिव के बारे में सोचते हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो आपका रिलीजियस है, आप शिव के बारे में सोचिए, आपके कोई भी भगवान के बारे में आप सोचो, राइट, वो आपके ऊपर है। बाद में आप बाइबल स्टडी, आई यूज्ड टू स्टडी द बाइबल, यू नो। तो आप बाइबल जब पढ़ते हो, बोलते हो कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, कैसे पढ़ते हो? डू यू स्टडी इट इन कॉन्टेक्स्ट, किसने बोला, किसने क्या बोला, क्यों बोला, राइट। तो ये बाइबल पढ़ रहे थे रैंडमली, ये बाइबल पढ़ रहे थे रैंडमली, ये सपने के बारे में सोच रहे थे अपने, और रैंडमली इन्होंने यूएफसी देखा। यूएफसी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है, उसमें से एक फाइटर है, उससे बहुत इंप्रेस थे वो, राइट। एंड फाइनली उसने अपने हाथ में टैटू चिपका दिया। ये 3 इंस्टेंसेस स्टार्टिंग में बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं वो टैटू चिपका दिया उसकी वजह से, राइट। इसकी कोई सेंस होती नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है टेक्निकली। आप किसी को बोलोगे क्या सेंस है इसमें? तो हम देखते हैं इसका रीजन नंबर 1 फॉर गेटिंग द टैटू। 2 रीजंस है। रीजन नंबर 1 देखते हैं हम। तो इसमें लिखा है कि सक्सेसफुल वेस्टर्न यूएफसी फाइटर who has won many fights has a tattoo। तो एक स्पोर्ट्समैन है, एक फाइटर है जिसके बॉडी में टैटू है। अभी उसके बॉडी में टैटू है,
वो देख के इम्प्रेस होके आप अपने बॉडी में लगाओगे टैटू. दिस इज नॉट सेंसिकल. Like, it is nonsense actually. It is not sensible to put this. आपने किसी ने कोई फेमस आदमी ने कुछ पहना या कुछ डाला, उसकी लाइफ में वो सिग्निफिकेंट है, वो फिलिपींस 4:13 शायद. और क्या है रीजन उसने चिपकाया? जस्ट बिकॉज ही पुट इट, यू आर गोइंग टू पुट इट ऑन योर बॉडी. अपने बॉडी में आप डालने वाले हो बिकॉज कोई भी डाला. दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिली रीजन टू पुट अ टैटू, राइट? हम भी अपने बॉडी में टैटू लगाते नहीं. ऐसा ये एक्चुअली ये पूरा टॉक वो नहीं है कि टैटू लगाना या नहीं लगाना चाहिए. बट द थिंग इज दैट आप लगाते भी हो तो समझना चाहिए क्यों लगाया. आप तो हिंदू हो, आपने क्रिश्चियन बाइबल वर्स का टैटू अपने ऊपर लगा दिया और कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता नहीं, और लगाया भी वो उसकी वजह से नहीं, बाइबल की वजह से भी नहीं. आपने लगा दिया क्योंकि एक फाइटर है जिसके बॉडी में सेम टैटू है, तो मैं भी अपने बॉडी में सेम टैटू लगाऊंगा विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट. और शायद मैं उनकी तरह सक्सेसफुल हो सकता हूँ, ऐसा करके एक आइडिया है. ऑलरेडी रणवीर सक्सेसफुल है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब, वो मुझे लगता है जब मैंने स्टडी किया था, इजीली इन्फ्लुएंस है रणवीर. फाइटिंग देखते हैं या WWF देखते हैं, ये सब देख के उसका फिलॉसफी वहाँ से आता है. ऐसा नहीं कि वो बाइबल का टेक्स्ट पढ़ के, उसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ के, ये सब देख के. इवन विथ हिंदुइज्म ही डज द सेम. इतना डेप्थ में नहीं जाते, पढ़ते नहीं है टेक्सचुअल. तो ऐसा अपने आप को इंटेलेक्चुअल एथलीट बोलने को आपको शर्म आना चाहिए. तो ये है वन ऑफ द रीजंस. फर्स्ट रीजन नंबर 1, जॉन जोन्स फाइटर है और उन्होंने अपने बॉडी में टैटू लगाया. ये जॉन जोन्स, और ये उनके बॉडी का टैटू हाईलाइट किया है यहाँ पे, राइट? UFC फाइटर थे. अभी नाउ दिस UFC फाइटर इज व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग इज प्रीटी गुड. इसमें लिखा गया है कि ये उनका डेटा अभी तक, एटलीस्ट अभी तक का रिकॉर्ड है. 29 मैचेस खेले और उसमें से 27 मैचेस वो जीते. एक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, वो भी कंट्रोवर्सी था, वो भी उनको जीतना चाहिए था, लेकिन हो गया. तो मीन्स ही इज सच अ गुड फाइटर. तो रणवीर सोचते कि ये फाइटर इज अ गुड फाइटर बिकॉज उसका स्ट्रेंथ आता है ये टैटू से. ये टैटू लगाते, जो टैटू लगाते, उस वहां से उसका स्ट्रेंथ आता है. एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू. ये उसका रियलिटी है नहीं, बिकॉज मुंबई में बहुत सारे छपरी लोग हैं जिनके बॉडी में बहुत टैटूज पड़े, राइट? वो कभी कुछ आगे बन नहीं पाए वो टैटू लेके. टैटू कोई भी लगाता है, उससे कुछ वो नहीं है. इट इज नॉट अ साइन ऑफ सक्सेस, राइट? अभी कल शाहरुख खान ने कुछ डाल दिया समझो टैटू, मैं भी उस टैटू लगा के शाहरुख खान नहीं बनूंगा. आप कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकते खाली टैटू लगा के. लेकिन रणवीर बिलीव करते, ये उनके वर्ड्स है, वो कहते हैं कि टैटूज आर स्टोरीज यू पुट ऑन योर बॉडी टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ सर्टेन माइंडसेट और पार्ट ऑफ योर एवोल्यूशन. चलो उन्होंने टैटू के बारे में ऐसा बोला है, टैटू ये है, लेकिन ये स्टोरी, ये कहानी, ये तो जॉन जोन्स का कहानी है. उसने टैटू अपने बॉडी में डाला है, उसके रीजन की वजह से डाला है. आप खाली उसका, उन्होंने क्या रीजन से डाला है वो रीजन भी आप जानते नहीं हो एक्चुअली, फिर भी आपने चिपका दिया बिकॉज आपको लगता है कि वो टैटू लगाने से वो जीत रहा है मैचेस, या वो टैटू लगाने से वो सक्सेस हो गए. ऐसा नहीं होता. और ये आपकी इट इज अ वेरी फ्लॉड रीजनिंग. इट्स अ वेरी फ्लॉड रीजनिंग. आप, एंड अगेन, आप वैसे भी, मैं आपको आपके वर्ड्स को कितना सीरियसली ले सकता हूँ मुझे भी पता नहीं रणवीर, बिकॉज आपने ये भी कहा है, आई वॉज नेवर गुड एट स्पोर्ट्स बट आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल एथलीट. और मुझे हंसी आ रही थी यहाँ पे जब आप बोलते हो मैं इंटेलेक्चुअल एथलीट हूँ, बिकॉज एक सिंपल बाइबल वर्स भी आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे. तो आई डोंट नो एट व्हाट लेवल. अभी कोई चेस प्लेयर बोलता होगा आई एम एन इंटेलेक्चुअल एथलीट, मैं समझ सकता हूँ. बट अगेन, लाइक स्किपिंग टू दिस, जस्ट बिकॉज समबडी पुट अ टैटू, पुटिंग टैटू इज नॉट. अभी आपने दूसरा कोट किया अपने ब्लॉग में कि आपका आइडियोलॉजी ये है कि ड्वेन जॉनसन अगेन वो एक WWF का रेसलर है. तो मुझे यहाँ पे हमेशा डाउट हो गया कि रणवीर खाली कुश्ती, वो सब UFC देखते हैं, रेसलिंग देखते हैं, और उनके गुरु या उनके फिलॉसफी वो सब ये टीवी देख के या रेसलिंग देख के वहां से लेते, ऐसे लोगों से लेते, राइट? ड्वेन जॉनसन सेज टैटू इन पॉलिनेशियन कल्चर आर स्पिरिचुअल. वो उनका कल्चर है, आपका कल्चर नहीं है पहले तो. एंड उसके लिए वो स्ट्रेंथ, मोटिवेशन एंड प्रोटेक्शन, वो उसका थॉट है, राइट? अब अभी ये ड्वेन जॉनसन, उनके बॉडी में इतने सारे टैटूज है, हम देखते अलग अलग टैटू था. तो ये सब उन्होंने अपने बॉडी में टैटू लगाया उसके कल्चर, उसके सिग्निफिकेंस में, राइट? बिकॉज ड्वेन जॉनसन ने टैटू लगाया, वो ड्वेन जॉनसन बन गए और उसकी वजह से और सक्सेसफुल हो गए. दैट इज नॉट द रीजन.
एनीबडी पुट्स द टैटू, सब ड्वेन जॉनसन नहीं बनते। अभी मुझे यहाँ पे रणवीर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये रणवीर ने कहा है, अ फेमस यूएफसी फाइटर जॉन जोन्स हैज दिस बाइबल वर्स टैटूड। इट सेज आई कैन डू ऑल थिंग्स टू हिम ही गिव्स मी स्ट्रेंथ, फिलिपियंस 4:13, राइट। उन्होंने अपने छाती में ये टैटू लगाया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रणवीर ने एक इंटरप्रिटेशन, ये बाइबल वर्स का इंटरप्रिटेशन विच इज अ बैड इंटरप्रिटेशन, वो आपने उसके अंदर से जीसस को निकाल दिया, बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट जीसस, राइट। ये आप उसका इंटरप्रिटेशन दे रहे हो। इट मीन्स एनीथिंग यू डू इन लाइफ, द यूनिवर्स इज डूइंग इट थ्रू यू, इट इज नॉट जस्ट यू, राइट। ये रणवीर का इंटरप्रिटेशन है। जो ऑथर ने लिखा था ये पर्टिकुलर वर्स, वो ये कह रहे, ये बोल भी नहीं रहे दिस इज अबाउट आप कुछ भी करोगे, यूनिवर्स आपके साथ है, राइट, या यूनिवर्स आपके थ्रू ये काम करता है, ऐसा तो बात ही नहीं कर रहा है ये पर्टिकुलर वर्स। तो हम ये कॉन्टेक्स्ट फिलिपियंस चैप्टर नंबर 4 वर्स 13 भी आगे देखेंगे, मेकिंग सेंस ऑफ फिलिपियंस 4:13। लेकिन अभी हम उसके रीजंस देखते हैं कि रणवीर अभी बोलता है कि वो टाइम में उनको लगा कि बहुत एरोगेंट थे, तो स्पिरिचुअलिटी को वो कोप इन करना चाहते, स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में डालना चाहते थे। तो इसकी वजह से उसका रीजन नंबर 2 है। रीजन नंबर 1 तो उन्होंने अपने जॉन जोन्स को देख के टैटू लगा दिया कि वो बंदा सक्सेसफुल है इतना, शायद उनके टैटू के वजह से। तो मैंने अपने क्रिश्चियन बाइबल वर्स, आप क्रिश्चियन हो नहीं, पहले तो आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, आपने वीडियो डाला है उसमें आप यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज अ हिंदू, लेकिन आप क्रिश्चियन बाइबल वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके अपने बॉडी में डालते हो। आपको अपने स्क्रिप्चर्स का कुछ वैल्यू नहीं है, नहीं तो आप डालते थे अपने स्क्रिप्चर्स को, राइट। अभी रीजन नंबर 2 है, ये मुझे पता नहीं रीजन नंबर 2 फॉर श्योर, लेकिन एक हिंट है रणवीर के स्टेटमेंट से कि रणवीर के लाइफ में प्रॉब्ली क्रिश्चियन गर्ल थी, परहैप्स, हु केम इन हिज लाइफ, राइट। आप देखते हो वीडियो में वो कितना ब्लश करता है। वो कहता है कि someone special came into my life, she brought positivity to my life, someone special, right। और उनका स्टेटमेंट है यहाँ पे, रणवीर इलाहाबादी क्या कहता है कि then at the point someone special came in my life, she brought positivity to my life, I felt I should symbolize that moment। जब वो मेरे जिंदगी में आ गई तो वो मोमेंट ना, अभी ये लड़की क्रिश्चियन थी क्या वो भी मुझे पता नहीं, लेकिन अगर वो हिंदू थी तो हिंदू वाला कोई टैटू लगाना चाहिए था आपको, भगवत गीता का रिलीजियस थी। मुसलमान होते तो आप अल्लाह अकबर लेके अपने बॉडी में लगा देते थे, मुझे लगता है, लेकिन यहाँ पे शायद क्रिश्चियन थी इसलिए आपने क्रिश्चियन का टैटू लगा दिया, बाइबल वर्स का टैटू अपने ऊपर लगा दिया। बोलता है रणवीर कहते हैं कि आई फेल्ट आई शुड सिंबलाइज दैट मोमेंट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ माय एरोगेंस। और ये भी मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे, रणवीर बोलता है बीइंग अवेयर ऑफ माय एरोगेंस, एरोगेंस इज नेगेटिव ऑफ एंगर एंड माय फेथ। ये लाइन में एरोगेंस नेगेटिव है, एंगर नेगेटिव है, फेथ हाउ इज इट कमिंग इन दिस, ये कैटेगरी में कैसे आता है मुझे समझ में नहीं आया। और हिंदू लोग जो उनके हिंदू भाई है, तो उनको पूछिए ये मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, आपको डाउट है आपके फेथ के ऊपर, आपके रिलीजन के ऊपर, राइट। एंड उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली कहा है आई गॉट अ टैटू ऑफ फिलिपियंस 4:13, दीज आर माय फेवरेट कोट्स, राइट। तो फिलिपियंस 4:13, सो सेकंड रीजन रणवीर ने क्यों लगाया, राइट, इसमें दिखा गया द वर्ड शी से मालूम पड़ता है कि लड़की का मामला है, राइट, विच इज अगेन आफ्टर आई स्टडीड दिस, वो लड़की क्रिश्चियन है कौन है आई डोंट केयर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, लेकिन दिस इज प्रॉब्लमैटिक। 2 रीजन हमने देखा, पहले तो एक वेस्टर्न फाइटर, रीजन नंबर 1 फॉर गेटिंग द बाइबल टैटू वर्स नंबर इज बिकॉज एक वेस्टर्न यूएफसी फाइटर उन्होंने जो सक्सेसफुल थे अपने फाइटिंग करियर में, वो सक्सेसफुल थे, उन्होंने लगाया, कोई रीजन की वजह से उन्होंने लगाया वो टैटू, इसलिए रणवीर ने कॉपी किया उनको, जो सेंस नहीं बनता, राइट। कल शाहरुख खान एक अच्छा एक्टर है, रोमांटिक एक्टर, लेकिन ही कम्स फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, राइट, एंड मुस्लिम्स आर सर्कमसाइज्ड। तो मैं जाके अपना कटवाऊंगा, कोई आदमी जाके अपना कटवाएगा बिकॉज ही बिलीव्स इन शाहरुख खान, दैट इज अ वर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड दैट्स अ वर्स्ट रीजन टू आल्सो गेट सर्कमसाइज्ड, राइट। तो रणवीर आई डोंट थिंक सो, जब रणवीर ये सब चीज करते हैं, राइट, ही इज नॉट थिंकिंग इन अ रैशनल वे ऑफ पुटिंग इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने ये चीज देखा, मैं इन्फ्लुएंस हो गया वो चीज से और मैंने अपने ऊपर टैटू लगा दिया। और दूसरी, अगर आप क्रिश्चियन कोई गर्लफ्रेंड थी उसके वजह से आपने टैटू लगाया बाइबल वर्स का, देन लाइक यू नो दैट इज ऑल्सो वेरी सिली, नॉट अ गुड रीजन ना। आपके पास फ्रीडम है, आप कुछ भी लगाओ, लेकिन
ये एक वैलिड रीजन नहीं होता, क्या बोलते हैं, बाइबल वर्स को लगाने अपने बॉडी में। अभी हम एक और चीज देखते हैं। अभी रणवीर जिन क्या बोलते हैं अपने ये यूएफसी फाइटर से इन्फ्लुएंस थे, जॉन जोन्स, राइट। लेकिन जॉन जोन्स ने टैटू क्यों लगाया था? और दिस विल बी वेरी सरप्राइजिंग। अभी जॉन जोन्स थे, वो फाइटर है जो हम जानते हैं, लेकिन उसके फादर वो एक क्रिश्चियन पास्टर थे। तो ये पासबान के बेटे हैं जॉन जोन्स। और तो उन्होंने ये टैटू इसलिए लगाया नहीं, वन ऑफ द रीजन ही डिड नॉट पुट दिस टैटू बिकॉज उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं ये बाइबल का टैटू लगाऊंगा, इसके वजह से मैं सब मैचेस, फाइटिंग मैच जीतूंगा। लकी चार्म की वजह से लगाया नहीं है, राइट। और सेकंड रीजन जो उसने बाइबल वर्स लगाया नहीं है, आई मीन लगाया अपने बॉडी में, इट इज नॉट टू प्रीच अबाउट जीसस और क्रिश्चियनिटी। बहुत लोग को लगता है कि वो जीसस के बारे में या क्रिश्चियनिटी के बारे में प्रीच करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बाइबल वर्स लगाया है, लेकिन वो भी रीजन नहीं है। उनका एक्चुअल पर्सनल रीजन है, राइट। तो ये एक स्पोर्ट्स कीड़ा करके एक मैगजीन है, आई मीन वेबसाइट है, उन्होंने ये स्टोरी कवर अप किया, और उसमें ये पॉइंट है कि उनके बॉडी में फिलिपियंस 4:13 लिखा है बाइबल वर्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन्स मी। उसमें क्या था कि उन्होंने ये नोट किया है कि उनकी एक बहन थी, राइट, जो खुद पासबान की बेटी थी, राइट, और उनका फेवरेट बाइबल वर्स था फिलिपियंस 4:13, और शी डाइड ऑफ ब्रेन कैंसर। तो उसके मेमोरी के लिए जॉन जोन्स की सिस्टर, जिनका फेवरेट ये बाइबल वर्स था फिलिपियंस 4:13, उसके लिए टू रिमेम्बर हर सिस्टर हु डाइड, इसलिए उसने टैटू लगाया। तो रणवीर सिंह बोल रहा हूँ, रणवीर अपराधी, वो इनको देख के अपने बॉडी में लगाते हैं। दिस इज लाइक सिमिलर टू लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे आमिर खान का एक मूवी था गजनी, राइट। ये गजनी आप बहुत लोगों ने देखा होगा मूवी, राइट। तो उसमें स्टोरी क्या था कि उनका पहले तो मेमोरी लॉस होता था, और प्लस उन्होंने अपने बॉडी में चिपका दिया टैटू, कल्पना वाज किल्ड, राइट। अभी आमिर खान ने वो मूवी के लिए, ये टेम्पररी टैटू भी है, परमानेंट भी नहीं होगा, राइट, लेकिन वो मूवी के लिए उसने ऐसा सब फोटो लगा दिया। लेकिन आप बोलोगे कि अरे मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हूं, तो मैं भी अपने बॉडी में कल्पना वाज किल्ड करके लगा चिपका दूंगा, राइट। तो इसकी भी कोई सेंस होती नहीं है। दिस इज वन ऑफ द फूलिश रीजंस टू पुट अ टैटू, राइट। आइदर बिकॉज आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन से आप इन्फ्लुएंस होके उसके बॉडी में टैटू है, इवन दो ही इज अ क्रिश्चियन, उसका पर्सनल सिग्निफिकेंस है वो टैटू लगाने के लिए, आप वो देख के इंटरप्रेट करते हो अरे ये सक्सेसफुल है क्योंकि टैटू की वजह से मैं भी अपने बॉडी में उसका टैटू लगाऊंगा। ये बेवकूफ़ी है। और लड़की के लिए अपने बॉडी में टैटू लगाना, वो तो उससे भी बड़ा बेवकूफ़ी है, राइट। ये मैं मानता हूँ, एटलीस्ट आपकी वाइफ भी नहीं हो। तो दिस इज अगेन फूलिशनेस फ्रॉम रणवीर पार्ट, एंड रणवीर इज एन इन्फ्लुएंसर। ये कितने लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन क्या एडवाइस देते हैं मैं खुदा जाने। ऐसे ऐसे एडवाइस बहुत, आई थिंक सो दिस इज फूलिश एडवाइस इवन टू गिव टू यंग पीपल। सो फर्दर हम देखते हैं फिलिपींस चैप्टर नंबर 4:13 का, इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, राइट। व्हाट डज फिलिपींस मतलब क्या है? और दिस इज फॉर नॉट जस्ट अपने क्रिश्चियंस, बट दिस इज फॉर द हिंदू फ्रेंड्स जो जानना चाहते हैं भाई ये फिलिपींस 4:13 है क्या, जो उन्होंने हाथ में अपना चिपकाया है। तो पहले ये आपको मैप दिखाता हूँ मैं। ये है मैप, बाइबल बिब्लिकल टाइम्स का एक मैप है। इसमें सिटीज है, रोमन सिटी आपको दिखते हैं, आपको यूरोपियन एंड एशिया माइनर का जगह दिखाई देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सिटी है, सिटी ऑफ फिलिपी, विच इज इन मैसिडोनिया, यूरोपियन जगह में। रणवीर के हाथ में जो टैटू है, राइट, ऑफ कोर्स इट इज द नेम ऑफ अ बिब्लिकल बुक, लेकिन वो बुक, वो एक जगह का नाम भी है, एक जगह जो यूरोप में है। तो यूरोपियन सिटी, मैसिडोनियन सिटी को उसने अपने हाथ में चिपकाया है, उनको पता भी नहीं क्यों, राइट। ये यूरोपियन सिटी है। तो जो सुन रहे हैं जिसको पता नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि एक सिटी का नाम है फिलिपी, और वहाँ के लोग रहने वाले उनको फिलिपियंस बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो डाला सिटी के बेस्ड, वहाँ के लोगों का नाम, लोगों का आइडेंटिटी है, जैसे इंडिया के इंडियंस, फिलिपी के फिलिपियंस, वैसा ही है। तो और किसने लिखा है ये बुक, राइट, ये बुक जो बाइबल में है फिलिपियंस, इट्स रिटन बाय अपोस्टल पॉल। रणवीर अपोस्टल पॉल के बारे में बात भी नहीं करते,
अपोस्टल पॉल यीशु मसीह के एक अपोस्टल, इसके वो एक डिसाइपल थे, राइट? ही फॉलोड जीसस क्राइस्ट और उन्होंने क्रिश्चियनिटी स्प्रेड किया है। तो अपोस्टल पॉल ने लिखा है, और किसको लिखा है अपोस्टल पॉल ने? अपोस्टल पॉल ने क्रिश्चियंस को लिखा है, ये लेटर क्रिश्चियंस को लिखा है। तो अपोस्टल पॉल क्रिश्चियंस को, जो फिलिपी में रहते हैं, उनको फिलिपियंस, द क्रिश्चियंस ओवर देयर मैसिडोनिया में, आपने वो एक टेक्स्ट बाय वन ऑथर टू वन ऑडियंस इन अ बुक, वो आपने अपने हाथ में चिपका दिया है। वो टेक्स्ट भी आपने चिपकाया नहीं, आपने खाली रेफरेंस चिपका दिया। और रीजन क्यों है बुक का नाम मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, क्योंकि सिटी का नाम फिलिपी था इसलिए। और वो क्या था, पॉल का, इट वाज फाउंडेड, एक चर्च वहाँ पे बना था फिलिपी वैसे, पॉल के मिशनरी जर्नी से। तो रणवीर ने अपने हाथ में एक चर्च का नाम लिखा है, चर्च लोकेशन का नाम लिखा है, जहाँ पे लोग क्रिश्चियंस बन गए बिकॉज ऑफ मिशनरी वर्क, राइट? तो अभी अब बोलिए मत कि भाई रणवीर को किसी ने राइस बैग दे दिया ये टैटू लगाने, वो अपने खुद की बेवकूफ़ी करके कुछ भी लगा देते हैं अपने बॉडी में, राइट? सो क्रिश्चियन शुड नॉट बी ब्लेम फॉर दिस, फॉर व्हाट रणवीर जो करते हैं उसमें। और कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये क्यों लिखा है फिलिपियंस 4:13? कॉन्टेक्स्ट था कि पॉल प्रिजन में था, जेल में था, तब उन्होंने ये लेटर लिखा है, राइट? और इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रिजन एपिसल, एपिसल मतलब लेटर, यानी वो चिट्ठी लिखा जेल से, किसको? फॉर द फिलिपियंस, उनको एंकरेज करने के लिए। और रणबीर ने अभी क्या एक मिस्टेक किया था, एक इंटरप्रिटेशन किया था। उन्होंने कहा कि दिस लाइक फिलिपियंस 4:13 को उन्होंने इंटरप्रेट किया, आई कैन डू ऑल थिंग्स टू ही हू स्ट्रेंथन्स मी। उन्होंने इंटरप्रेट किया कि आई कैन डू, इट मींस एनीथिंग यू डू इन लाइफ द यूनिवर्स इज डूइंग, राइट, थ्रू यू एंड इट्स नॉट यू। ये कुछ कहता नहीं है। जब पॉल लिख रहा था टू फिलिपियंस, वो कह रहा नहीं था भाई आप कुछ भी करो, आपके अंदर से यूनिवर्स करने वाला है, राइट? क्योंकि ही इज नॉट यूनिवर्स, राइट? रणवीर ने ही निकाल दिया कॉन्टेक्स्ट से बाइबल वर्स में। एक्चुअली आप ये वीडियो में भी जाओगे ना, जहाँ पे रणवीर कहता है टैटू के बारे में, वो टैटू के नीचे, सॉरी वो टैटू बोल रहा हूँ, वो वीडियो के नीचे आप जाओगे ना, बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग ने वो बाइबल वर्स डाला है, आई कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी, क्राइस्ट टू स्ट्रेंथन्स मी। फिर भी रणवीर पता नहीं, वो जानबूझ के लोगों को मिस इंटरप्रेट या मिसलीड करते हैं, क्योंकि आपको समझना चाहिए हाँ भाई मैं गलत हूँ, लेकिन आप एरोगेंट आदमी हो, आप सोचते हो मैं इंटेलेक्चुअल एथलीट हूँ, तो मुझे सीरियसली आपको कहना चाहता है कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, राइट? यू आर नॉट एन इंटेलेक्चुअल एथलीट, यू आर डूइंग फुलिशनेस, राइट? आप बेवकूफ़ी कर रहे हो जब आप मिस इंटरप्रेट करते हो। तो ये बाइबल वर्स कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूँ आपके लिए, फॉर पीपल हु डू नॉट नो। ये बाइबल वर्स अपोस्टल पॉल कहता है रिलायंस में कि दे शुड पुट देयर फेथ इन जीसस, एंड इट इज टॉकिंग अबाउट कंटेंटमेंट, बी कंटेंट इन एवरी सिचुएशन, राइट? इट इज नॉट, ये क्रिश्चियंस लोग भी उन लोग कभी कभी मिस इंटरप्रेट करते हैं ये बाइबल वर्स। उनको लगता है कि ये कंपटीशन के बारे में, आई कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो नहीं कहता है, वो कहता है कि इन ऑल द सिचुएशन टू बी कंटेंट अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस, राइट? मैं कुछ भी कर सकता हूँ ये पूरे सर्कमस्टांसेस में, बिकॉज जीसस गिव्स मी स्ट्रेंथ। एंड कुछ भी में ये नहीं है कि आई डू सिन और आई डू एनीथिंग दैट वायलेट्स गॉड्स वर्ड, वो नहीं, कुछ भी का मतलब ये नहीं है वो कॉन्टेक्स्ट में कि आई कैन डू एनी काइंड ऑफ सिन, राइट? इसमें स्पेसिफिकली इज टॉकिंग अबाउट आई कैन, वॉट एवर सिचुएशन मेरे लाइफ में होगा, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, आई कैन ट्रस्ट इन जीसस, माई स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम अ रिलेशन विद क्राइस्ट। इसलिए पॉल स्पेसिफिक बोलता है आई कैन डू ऑल थिंग्स टू हिम हु गिव्स मी स्ट्रेंथ, माई सोर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ इज हिम, जीसस क्राइस्ट, राइट? तो इंटरप्रिटेशन हम देखते हैं, उनका जो टैटू है फिलिपियंस 4:13, ये क्या कहता है? I can do all things to him who strengthens me. I can do all things to him who strengthens me. और ये him है Christ. तो this is the main thing रणवीर निकालना चाहता है ये बाइबल वर्स से, and this is the main thing that I want everybody to understand, that it is all about Jesus Christ, right? So it should not be misinterpreted. तो reason for putting the tattoo, right? Again, जो क्रिश्चियंस भी अपने बॉडी में टैटू लगाते बाइबल वर्स का, उसका कुछ मतलब नहीं होता अगर वो बाइबल फॉलो नहीं करते, राइट? इफ दे डोंट लव जीसस, इफ दे डोंट फॉलो, आप अपने बॉडी में बहुत चीज लगा सकते हैं, आप इनको विश्वास करते हो, उनके विश्वास करते हो, तो आपका फ्रीडम है, लेकिन फॉलोइंग गॉड इज मोर इंपॉर्टेंट देन पुटिंग अ टैटू। और रणबीर तो जीसस के बारे में है भी नहीं, ये आपने, उसने टैटू लगाया, उसने बेवकूफ़ी के लिए क्रिश्चियन का बाइबल वर्स का टैटू लगाया, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस, प्रॉब्ली वन ऑफ ये इन्फ्लुएंस हो गए एक फाइटर के ऊपर से, या उनके लाइफ में कोई स्पेशल समवन आ गया
उसकी वजह से उन्होंने टैटू लगाया। लेकिन द रियल रीजन फॉर कमिंग टू लाइक यू नो शुड बी जीसस, राइट? आपका इफ इट इज नॉट अबाउट क्राइस्ट तो ये टैटू लगाना बेकार है। तो फाइनली मैं यहाँ पे समराइज करना चाहता हूँ की पॉइंट्स। आज हम लोग ने क्या देखा डिस्कशन में? नंबर वन, हमने देखा कि अपने हिंदू यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, उन्होंने अपने बॉडी में टैटू लगाया बाइबल का, होली होली बाइबल का, जो ओरिजिनली अपोस्टल पॉलोस उन्होंने चर्च एट फिलिपी को लिखा था, राइट? वो था कॉन्टेक्स्ट, राइट? एंड दिस इज और रणवीर क्या करते हैं इसमें, ये वर्स का मीनिंग भी चेंज करते हैं, जीसस का रेफरेंस को चेंज करके वो यूनिवर्स डालते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज नॉट। दिस इज द प्रॉब्लम विद रणवीर। वो अपना, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, वो एक्सीजीसिस नहीं करते। इफ यू आर इंटेलेक्चुअल यू शुड डू एक्सीजीसिस ऑफ द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को खोल के समझो, उसका कॉन्टेक्स्ट समझो। आप आईसीजीसिस करते हो, विच इज अ टर्म जिसका मतलब आप अपना इंटरप्रिटेशन डालते हो टेक्स्ट में। ऐसे बाइबल आप अपने हिंदू स्क्रिप्चर से करो, ऐसे बाइबल से ऐसे खिलवाड़ मत करो। ये मैं आपका दिस इज माय सजेशन फॉर यू, राइट? एंड इट इज आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट डोंट डू इट प्लीज ब्रदर, यू नो। तो सिमिलर, और ये यूएफसी का टैटू, यूएफसी का कोई बंदे ने या कोई स्पोर्ट्समैन में कोई टैटू लगाया है, राइट, फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, आप अपने बॉडी में मत लगाओ ऐसे। ये बच्चों का आदत है, लेकिन ना ये छोटे छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं ना बिना सोच के, वैसी आदत की वजह से उन्होंने अपना टैटू अपने बॉडी में लगा दिया रणवीर ने। देन दिस इज वेरी बैड, राइट? और दूसरा, आपके लाइफ में कोई लड़की आ गई, उसकी वजह से आपने टैटू लगा दिया। अब ये मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ क्योंकि आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, रणवीर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है शी केम इन माय लाइफ एंड मैंने उसके बाद टैटू लगाया। तो ये पता नहीं क्यों कौन सी लड़की को देख के आपने अपने बॉडी में टैटू लगाया, सोचा कि ये टैटू लगाने। तो ये सब इट्स नॉट इवन अ वैलिड रीजन टू पुट अ टैटू, राइट? तो इसमें मेरा प्रॉब्लम है कि ये बाइबल वर्स को ट्विस्ट करते हैं, उसके ऊपर ये कहानी भी बोलते हैं, ऐसे बकवास कहानी है जो हिंदू लोग भी उसको डिफेंड नहीं कर सकते इसको, और क्रिश्चियंस भी इसका नहीं कर सकते। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि रणवीर का जो है फिलोसफी, ही मिक्सेस हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। इट इज नॉट हिंदुइज्म एंड इट इज नॉट क्रिश्चियनिटी। उसको मैं बोल देता हूँ, आई यूज द वर्ड चिंदुइज्म। वो मिक्स करके एक नया अपना रिलीजन या अपना नया कॉन्सेप्ट बना गए, जिसमें बाइबल वर्स भी वो ट्विस्ट कर गए। और उनके लाइफ में भी मेरे को लगता नहीं है कि जब आप ये WWF या UFC ये सब देख के आप इन्फ्लुएंस होकर अपने बॉडी में ये सब कुछ करते हो, आपका थिंकिंग वैसा है, तो यू आर अ वेरी बैड इन्फ्लुएंस, टू बी ऑनेस्ट। आई वुड से दैट इफ आपका रीजनिंग ऐसा है तो टू द यंगर जनरेशन। तो फाइनली मैं रणवीर को एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ इन दी एंड, वो ये है, इन कंक्लूजन, रणवीर, डोंट बी अ चिंदू। हिंदुइज्म फॉलो करना तो फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी फॉलो करना तो फॉलो करो, लेकिन मिक्स करके हिंदुइज्म प्लस क्रिश्चियनिटी चिंदुइज्म हो जाता है। और आई वुड टेल दिस अगेन, लास्ट टाइम भी आपको कहा है, अभी भी कहता हूँ, प्लीज डोंट बी अ चिंदू एंड रीड द बाइबल। आई विल एनकरेज यू टू रीड द बाइबल इन द कॉन्टेक्स्ट, एंड आई होप दैट कि ना आपके लाइफ में ये बाइबल वर्स कुछ आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके। यू नो, इट कुड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, यू विल सी जीसस। आप जीसस को एक्चुअली हाउ इट इज, हाउ ही इज, आपको बाइबल से टू द लाइफ ऑफ अपोस्टल पॉल और ये सब लोगों की वजह से अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो मुझे लगता नहीं है वो आपका इंटेंट है, लेकिन है तो यू नो आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो दैट इज माय टॉक फॉर टुडे। हाँ आकाश, ओके, तो मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्रिश्चियंस को क्या हमें, क्रिश्चियंस जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्फ्लुएंसर्स को सुनते हैं, जैसे कि रणवीर हो गया, या फिर वो खान सर हो गए, या दिव्या कर्ती सर हो गए, या फिर संदीप महेश्वरी हो गए। तो इन लोगों जो है सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तो क्रिश्चियंस लोग ऑफन टाइम में ना क्रॉस ओवर कर जाते हैं इनके वीडियोस के ऊपर। तो राइट। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनका जो एडवाइस होता है कितना तक सही होता है, और कितना तक हमें जो है डिनाई करना होता है, और क्या हमें उनको सुनना भी चाहिए या नहीं? ओके, तो मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या है कि ना, ऑफ कोर्स यूट्यूब की वजह से बहुत नॉलेज स्प्रेड हुआ है, तो नॉलेज लेने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या बोलते, जस्ट बिकॉज आपके पास मुंह है आप कुछ भी बोलते जाओगे, और आपके पास कान है सब कुछ सुनते जाओगे, वैसा वो बराबर नहीं है, राइट? आप खाते भी है तो 2 टाइम सोचते हो क्या खाना है, और कुछ कचरा नहीं खा मुंह में डालोगे, राइट? तो इसमें आपको क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए, पहले तो बिब्लिकल वर्ल्ड व्यू रहना चाहिए, बाइबल क्या कहता है ये सब टॉपिक में, एंड देन यहाँ पे
इनको सुनना चाहिए, देयर माइट बी सम गुड थिंग्स। इवन रणवीर का मे बी कोई टॉक होगा, जब पॉडकास्ट होगा जिसमें कोई होगा कोई इंटेलेक्चुअल बंदा, तो उससे सुन के उसको भी आप कोट कर सकते हो, उसको भी आप आपको नॉलेज मिलता है वैसे देखा जाएगा तो। लेकिन नॉट एवरीथिंग जो वो बोलते हैं वो सही है, आपको फिल्टर करना पड़ेगा फ्रॉम द बिब्लिकल पर्सपेक्टिव, स्पेशली जो बाइबल के बारे में जो उन्होंने बोला है आज। वो तो मतलब एक छोटा बच्चा जिसको बाइबल पता होगा, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ता होगा, वो भी रणवीर से ज़्यादा समझ है उसको, राइट? तो ये और रीज़न ऑफ पुटिंग द टैटू भी गलत है। तो ऐसे लोग जिन जिन जो खाली टीवी देख के, वो ही खुद WWF देख के अपने बॉडी में टैटू लगाते हो आप, राइट? ये सब रीज़न है, तो ये इट इज़ नॉट अ वैलिड इंटेलेक्चुअल रीज़न। तो ऐसे लोग को आप सुनोगे तो आप भी ऐसे बिना मीन्स अपने बॉडी में पता नहीं क्या क्या डाल दोगे, तो नहीं, फिल्टर करो। माय पॉइंट इज फिल्टर व्हाट द बाइबल सेज, दिमाग लगाओ। जो कुछ यूट्यूबर कहते हैं वो सब 100% सच नहीं होता। उन्हें वीडियो बनाना है, व्यूज लेना है, उनका वो कुछ भी लेके लाएंगे, वो मानते नहीं है उसको भी लाएंगे, राइट? और उन लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। नॉट ओनली दिस, रणवीर के शो में बहुत चीज मिस इंटरप्रेट हुआ है। आपको पता है एक और अभी वीडियो हुआ है इस्लाम के ऊपर, वो हम शायद कभी फ्यूचर में देखेंगे, लेकिन उसमें भी कितना मिस इंटरप्रिटेशन है। आप वी कैन ऑल्सो टेक दैट मे बी इन द फ्यूचर। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि फिल्टर करो। सब पीपल जो कहते हैं हियर देम, राइट? कोई कोई सुनते ही नहीं है। आई से हियर देम बट फिल्टर करो और स्पेंड दैट टाइम, उसको एनालाइज करो भाई क्या है। उनका रीजन भी मैं आप किसी को बोलो अपने बॉडी में फिलिपींस 413 लगाने हैं, क्यों लगाना है? क्योंकि वो UFC कोई आदमी ने लगाया तो इसलिए आप लगाओ। आप किसी को ऐसे बात करके भी बोलोगे उसे पागल आदमी, राइट? उन वो तो आपको सीरियसली लेगा नहीं। या मेरे जिंदगी में एक लड़की आई थी तो मैंने चिपका दिया, ये एक बकवास रीजन है टू पुट अ टैटू। वो हिंदू भाई लोग को कैसे समझाएंगे वो भी मैं सोच रहा हूँ। क्रिश्चियंस को दिक्कत होती है, वो मुझे समझ में आ गया क्योंकि बाइबल वर्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन ये इसके मीन्स अपने आप को हिंदू बोल रहा है, हिंदू वाले भी सोच रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है ये बंदा, क्यों कर रहा है ऐसा बंदा? तो वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसलिए मैं उसको हिंदू भी मानता नहीं हूँ। वो खुद को बोलते हैं लेकिन ये हिंदुइज्म भी नहीं है। क्रिश्चियंस भी बहुत लैम है, राइट? वो लड़की अगर कोई क्रिश्चियन सी होगी, अगर कोई लड़की होगी वो क्रिश्चियन होगी, तो है ना, एक हिंदू लड़के से रिश्ते में आना तो प्रॉब्लमेटिक है, क्रिश्चियन थियोलॉजी के अगेंस्ट में है वो। खैर वो उनका डिसीजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो है कि नहीं मुझे वो भी एक्चुअली टू बी यस यस ऑनेस्ट यस। पता नहीं कि क्रिश्चियन लड़की है, वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ इसलिए लगाया। नहीं तो अगर हिंदू लड़की होती तो एक हिंदुइज्म का कुछ टैटू लगा देता। और मुझे डाउट है कि अगर कोई मुस्लिम होते तो अल्लाह अकबर लगा के घूमता था। और लेकिन मोस्ट पीपल आर अगेंस्ट मुस्लिम्स, हिंदूज जो उसके ऑडियंस है, तो इसलिए शायद वो डजंट गो इन दैट लाइन। लेकिन वो साइड में जाते नहीं है वो ज़्यादा एक्सपोज करके, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत पड़ जाती है उसको। ओके, तो हम इसको यहीं एंड करेंगे। और ब्रदर थैंक यू, आपने बहुत ही या अच्छे से गाइड किया और चिंडोइज्म को फिर से दिखाया और चिंडोइज्म के फिलोसफी को ख़त्म किया। और जितने भी हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा। आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि चिंडोइज्म को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं। और आपको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। God bless you. Thank you so much.